Hello students, welcome to my channel English Made Easy by Aarti Joshi. So I am here again to teach you second part of the chapter number 3. The name of the chapter is Two Stories of Flying. So in my last video I taught you first part of the story, means first story of the chapter, the first flight, and now we are continuing with the second story named The Black Aeroplane by a famous author by Frederick Forsyth. So let me introduce the story. So it's a story where the writer gives an account of his own experience. He was flying an old Dakota aeroplane over France to England. Suddenly he was surrounded by black clouds and storm. It was almost a miracle that he was able to land his plane safely. So ये स्टोरी है जिसमें राइटर अपने आप से एक प्लेन उड़ा रहा है, उसका अपना एक्सपीरियंस है ये. ही वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा प्लेन उड़ा रहा था वो, एंड इट वॉज एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, बट सडनली उसका जो प्लेन है इट वॉज सराउंडेड बाय ब्लैक क्लाउड्स. एकदम से मौसम ख़राब हो जाता है और उसका बिल्कुल ही वॉज सराउंडेड बाय ब्लैक क्लाउड्स, मीन्स ब्लैक क्लाउड्स पूरा घेर लेते हैं उसको. एंड ही वॉज डिप्रेस्ड, ही वॉज वेरी मच कन्फ्यूज, ही वॉज वेरी मच हॉरिफाइड कि व्हाट टू डू नाउ. बट इट वॉज ऑलमोस्ट अ मिरेकल, एक चमत्कार होता है, एंड ही वॉज एबल टू लैंड हिज प्लेन सेफली. I think it was more than a miracle, that it's a story of courage and tireless effort. So we learn from these stories that courage and hard work, they are necessary for any success. So let us continue with the summary of the story. So the narrator was flying his Dakota aeroplane over France back to England, and the sky was clear. Moon was shining, stars were shining, and the narrator was very happy. It was 1:30 in the morning. He was very happy as he was planning to have breakfast with his family. He was getting holiday. At around 1:30 a.m., he called Paris control room to inquire about the route and location. Everything was going well, and he was thinking of his breakfast and holiday with his family. So as you can see in the picture, so जो नरेटर था वो ओल्ड डेकोटा प्लेन अपना उड़ा रहा था, एंड एवरीथिंग वाज ऑल राइट. रात एकदम नाइट क्लियर थी, स्काई वाज एकदम क्लियर, एंड मून वाज शाइनिंग, स्टार्स वाज शाइनिंग, एंड weather was pleasant. And he was very very happy because after a long time he was going on a holiday पे जा रहा था वो, and he was thinking that by the morning time he will reach his home. सुबह तक वो अपने घर पहुंच जाएगा. he was going to England, और अभी तो 1:30 हो रहा था, 1:30 बजे थे, and he was thinking that he would be at home, और वो अपना नाश्ता घर में करेगा जाके अपने घर पे. तो he was very happy for that. Now everything was going well, but the narrator had reached 150 kilometers away from Paris. 150 meters away from Paris he was. 150 kilometers away चला गया था वो पेरिस से. He saw huge clouds coming towards his plane. एकदम से देखा उसने कि इतने बड़े बड़े बादल, काले बादल उसकी प्लेन की तरफ, उसके एरोप्लेन की तरफ बढ़ रहे हैं. He could not fly. He could not fly up and cover them up, and didn't have enough fuel to fly around them. अब ना तो वो उनको क्रॉस कर पा रहा था, ना उसके आसपास से निकल के जा सकता था, बिकॉज उसके पास फ्यूल भी बहुत कम था. नाउ ही वॉज इन अ फस, परप्लेक्स्ड, कन्फ्यूज्ड. अब उसको कन्फ्यूज़न हो गया कि क्या करे. ही थॉट ऑफ गोइंग बैक, बट हिज अर्ज टू मीट हिज फैमिली डिड नॉट अलाउ हिम टू डू सो. एक बार मन में विचार आया कि वापस चलो, बिकॉज इट वॉज़ वेरी डेंजरस टू फ्लाई अ प्लेन इन सच काइंड ऑफ वेदर. लेकिन उसका वो अर्ज, जो उसका मन था घर जाने का, छुट्टी मनाने का, घर में जाके ब्रेकफास्ट करने का,
उसने उसको अलाउ नहीं किया वापस जाने को, एंड ही डिसाइडेड टू टेक रिस्क एंड फ्लू द प्लेन इनटू द स्टॉर्म। और उसने ये डिसाइड कर लिया कि ही विल टेक चैलेंज एंड ही विल फ्लाई द प्लेन इनटू द स्टॉर्म। उसी बादलों में, उसी स्टॉर्म में वो अपना प्लेन उड़ा के जाएगा, बिकॉज उसको वो मन हो रहा था घर जाने का। सडनली इट वॉज डार्क एंड ब्लैक ऑल अराउंड। एकदम अंधेरा छा गया आसपास, एंड द प्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड। ही वॉज नॉट एबल टू फ्लाई प्लेन प्रॉपरली। प्लेन भी एकदम से ट्विस्ट होने लगा, एंड द कंपास स्टॉप्ड वर्किंग एंड ऑल अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर ऑल्सो डेड। कंपास काम नहीं कर रहा था, डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही थी, प्लेन जो था एकदम से ट्विस्ट हो रहा था, पलट रहा था, एंड कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था। ही ट्राइड टू कॉन्टैक्ट पेरिस कंट्रोल रूम, बट द रेडियो वॉज ऑल्सो डेड। पेरिस कंट्रोल रूम से उसने पहले जब संपर्क स्थापित किया था, पूरा गाइडेंस ली थी, एवरीथिंग वॉज ऑल राइट। नाउ ही वॉज ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट पेरिस कंट्रोल रूम, बट रेडियो वॉज ऑल्सो नॉट वर्किंग। पेरिस कंट्रोल रूम से संपर्क भी नहीं हो पा रहा था, रेडियो सिग्नल्स भी नहीं आ पा रहे थे, एंड ही वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट इन स्टॉर्म। पूरा वो लॉस्ट हो गया था स्टॉर्म में। ही वॉज हॉरिफाइड, एकदम से वो डर गया था कि क्या करे और क्या ना करे। एकदम बादलों में प्लेन था, एंड ही वॉज टोटली अपसेट, एकदम अपसेट था कि वॉट टू डू नाउ। नाउ सडनली he saw another aeroplane near him. There was a ray of hope. एकदम से एक किरण, जैसे कि एक आशा की किरण आई। What was that? Suddenly he saw another aeroplane near him. उन्हीं बादलों में उसे एक और प्लेन नज़र आया। The plane had no lights. It was flying next to him. उस प्लेन की लाइट्स भी नहीं थी, और वो प्लेन लेकिन उसके आगे फ्लाई कर रहा था। He saw the pilot's face. The pilot lifted one hand and waved as if he was guiding the narrator to follow him. उसने देखा वो पायलट जो था वो अपना हाथ उठा के he was waving at him, हाथ हिला रहा था, वो उसको इशारे कर रहा था, जैसे वो उसको गाइड कर रहा था। he was instructing him to follow him, कि वो उसको फॉलो करे। he had no other option. नरेटर के पास कोई और ऑप्शन था नहीं, because he was totally lost. उसका अपना तो कोई रेडियो सिग्नल काम नहीं कर रहा था, कोई कंपास काम नहीं कर रही थी, तो देयर वॉज ओनली वन होप, दैट वॉज दैट अनदर एरोप्लेन। ही थॉट दैट ही हैड द अदर पायलट हु वांटेड टू सेव हिम, सो ही फॉलोड द प्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड फॉर अबाउट हाफ एन आवर। अब छोटे अच्छे बच्चे की तरह वो जो इंस्ट्रक्शंस उसको दे रहा था वो उसको फॉलो कर रहा था, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। ही वॉज फॉलोइंग हिम, हाफ एन आवर तक उसको फॉलो करता रहा। देन ही फेल्ट फ्राइटेंड। अब एकदम से उसको विचार आया, जब जैसे ही इमेजिन, ही थॉट दैट ही वॉज नॉट हैविंग इनफ फ्यूल, ही वॉज फ्राइटेंड। एकदम डर गया जब उसे ये समझ में आया, याद आया कि उसके पास तो ज़्यादा फ्यूल भी नहीं है। ही कैन नॉट फ्लाई द प्लेन फॉर मोर देन 5 or 10 minutes एज ही हैड नॉट इनफ फ्यूल लेफ्ट इन हिज प्लेन। वो तो अब ज़्यादा प्लेन उड़ा ही नहीं सकता, बिकॉज उसके प्लेन में ज़्यादा फ्यूल ही नहीं है। ही वॉज हॉरिफाइड, एकदम डर गया। द प्लेन इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टेड गोइंग डाउन एंड ही ऑल्सो फॉलोड इट। तभी उसने देखा कि दैट प्लेन वॉज गोइंग डाउन। वो प्लेन एकदम नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था, मीन्स इट वॉज फ्लाइंग डाउन, एंड ही ऑल्सो फॉलोड इट। और वो भी ब्लाइंडली एकदम से ओबीडियंट चाइल्ड की तरह उसको फॉलो करने लगा। सडनली ही सॉ another aeroplane near him. The plane had no lights. It was flying next to him. He saw the pilot's face. एकदम से क्या हुआ, एक another aeroplane was there in the sky. इतना एकदम से confusion था, वो डरा हुआ था, प्लेन उसका ट्विस्ट कर रहा था, आसपास अंधेरा था, कुछ भी दिख नहीं रहा था। एकदम से there was a ray of hope. एक आशा की किरण बनके एक एरोप्लेन उसको नज़र आया, ब्लैक एरोप्लेन, विच वॉज फ्लाइंग जस्ट नेक्स्ट टू हिम, जो उसके बिल्कुल आगे उड़ रहा था। एंड ही सॉ द पायलट्स फेस। द पायलट लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड एज इफ ही वॉज गाइडिंग द नरेटर टू फॉलो हिम। उसने देखा वो पायलट अपना हाथ उठा के इशारा कर रहा है, एज इफ ही वॉज गाइडिंग हिम, जैसे वो उसको गाइड कर रहा हो
कि उसको फॉलो करो. He had no other option. He thought that the other pilot wanted to save him. So he followed the plane like an obedient child for about half an hour. अब उसके पास तो कोई ऑप्शन बचा नहीं था, because his all signals were dead, compass was not working, he could not contact the control center. कोई ऑप्शन था नहीं और कुछ करने का, सिवाय एक ही होप थी उसके पास कि वो जो एरोप्लेन उसको दिखा था वो उसको गाइड कर रहा था. उसे लगा कि यही उसकी हेल्प कर सकता है. दैट इज़ वाई ही फॉलोड हिज इंस्ट्रक्शंस. जो जो उसने बोला उसने वैसे वैसे उसको फॉलो किया, एक अच्छे बच्चे की तरह उसको फॉलो करना शुरू कर दिया. देन ही फेल्ट फ्राइटेंड. एकदम से वो डर गया. वाई? बिकॉज ही कुड नॉट फ्लाई दिस प्लेन फॉर मोर देन 5 or 10 minutes. Because he had no fuel in it. He had not enough fuel in the plane. उसके पास इतना फ्यूल तो था ही नहीं कि वो ज़्यादा देर तक प्लेन उड़ा सके. When this idea struck in his mind, he was totally horrified. जब उसके दिमाग में ये आइडिया आया, ये सोचा उसने कि उसके प्लेन में तो इतना इनफ फ्यूल है ही नहीं कि वो ज़्यादा देर उड़ा सके. 5-10 मिनट से ज़्यादा वो प्लेन उड़ा ही नहीं सकता. तो वो और डर गया कि अब क्या करूँ. The plane in front of him started going down and he also followed it. और एकदम से क्या हुआ, वो जो आगे प्लेन उड़ रहा था, it started getting down. वो एकदम से नीचे उतरने लगा. And he also followed him. वो भी उतरने लगा नीचे. And by the God's grace, या फिर क्या बोलें, मतलब वो भगवान की मर्जी थी, कोई मिरेकल था या उसका करेज था कि क्या हुआ, he reached the runway safely. उसको आराम से वो रनवे मिल गई. And he was able to see the runway. उसको रनवे दिख गई और उसका प्लेन जो था वो रनवे पे आ गया. And he was able to land the plane safely. The narrator was very happy. He wanted to thank the pilot of another aeroplane. He turned back to look for the pilot, but there was no plane. अब जब वो उतरा, he was very happy because now he was safe. He wanted to thank the pilot of the another aeroplane. Obviously, वो तो थैंक यू बोलेगा बिकॉज उसको उसकी जान सिर्फ उसी एरोप्लेन के पायलट ने ही बचाई थी. इफ़ ही वुड नॉट हैव गाइडेड हिम, ही वुड हैव लॉस्ट हिज लाइफ. अगर उसने उसको गाइड नहीं किया होता तो उसकी लाइफ जान चली जाती, बिकॉज इट वॉज वेरी डेंजरस सिचुएशन. सो ही टर्न बैक टू लुक फॉर द पायलट. उसने जैसे पीछे मुड़ा और उसने देखा वो पायलट को देखूं, उसको थैंक यू बोलूं. बट देयर वॉज नो प्लेन, नीदर ऑन द रनवे नॉर इन द स्काई. ना तो रनवे पे कोई प्लेन था, ना स्काई में कोई प्लेन था. ही वॉज टोटली सरप्राइज्ड. एकदम हैरान हो गया, ये कैसे हो सकता है. द नरेटर वेंट एंड आस्क्ड द लेडी इन द कंट्रोल सेंटर अबाउट द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन. वो फटाफट कंट्रोल सेंटर गया एंड देन ही इंक्वायर्ड अबाउट दैट पायलट. उसके बारे में पूछा कि वो ब्लैक एरोप्लेन एक और जो उतरा उसके पायलट के बारे में पूछना शुरू कर दिया. And to his surprise, the lady told him that no other plane was seen flying on the sky. उस दिन in the sky there was no other plane. उस रात में उस प्लेन डकोटा एरोप्लेन के अलावा कोई और प्लेन राडार के थ्रू देखा नहीं गया. कोई और प्लेन था ही नहीं. He was very surprised. He did not know who helped him. It was a complete mystery for him. एकदम एक मिस्ट्री थी उसके लिए कि ये क्या, मुझे हेल्प किसने किया. सो स्टूडेंट्स, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डिसाइड वेदर द स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन इज़ अ मिस्ट्री और नॉट. डू यू नो व्हाट इज़ मिस्ट्री? मिस्ट्री इज़ अ हैपनिंग विच गोज़ बियॉन्ड एनी रैशनल एक्सप्लेनेशन. मिस्ट्री क्या होती है? जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, जिसका कोई एक्सप्लेन रैशनली प्रैक्टिकली उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता. लाइक जिसको आप कह सकते हो रहस्यमय चीज़, जिसका रहस्य रहता है हमेशा. तो वो एरोप्लेन भी एक रहस्य था जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था. वी कैन नॉट से हु वाज द पायलट ऑफ द मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन हु गाइडेड राइटर टू लैंड डकोटा सेफली. बट वी कैन से वन थिंग कि बियॉन्ड द सुपर पावर, लाइक नेचुरल पावर, सुपर नेचुरल पावर, उसको बिलीव करने से बेटर हम ये कह सकते हैं कि it was his sincere efforts. मतलब he continued to make sincere efforts with courage.
जब वो इतनी डेंजरस सिचुएशन में था, ही डिड नॉट लूज हिज होप, उसने होप लूज नहीं करी अपनी, एंड ही कंटिन्यूड टू मेक सिंसियर एफर्ट्स उसने करे, एंड दैट इज़ वाई ही सक्सीडेड इन लैंडिंग हिज प्लेन सेफली। इसीलिए वो अपना प्लेन जो था वो सेफली लैंड कर पाया। द पायलट ऑफ मिस्टीरियस प्लेन माइट बी फिगमेंट ऑफ हिज ओन इमेजिनेशन, हो सकता है वो उसकी इमेजिनेशन हो या क्या हो, ठीक है। तो आई पर्सनली फील दैट द प्रेजेंस ऑफ सुप्रीम पावर is just in our thoughts, in our acts, all the time of means at the time of adversity our own power help us। जब हम बहुत बुरी सिचुएशंस में होते हैं तो कहीं ना कहीं अपने अंदर की ही पावर हम अगर जगाएं तो वो नेचुरल पावर, वो जो सुपर नेचुरल पावर, सुप्रीम पावर जो है भगवान ने हमारे अंदर ही दी है। तो एक चाहिए एक कोशिश उसको खोजने की, उसको हाईलाइट करने की जो उसने की, एंड दैट इज़ वाई वी मे कॉल इट सुप्रीम पावर। वो जो हमारे अंदर से आती है उसी सुप्रीम पावर ने ही उसको हेल्प किया उसका प्लेन सेफली लैंड करने का। तो हाउ वाज द स्टोरी? आई थिंक यू माइट हैव अंडरस्टूड इट। सो थैंक यू चिल्ड्रन, एंड इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लाइक और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब तो मेरे चैनल को करना ही है आपको। Thank you so much.